Then we take the next topic, the world problem related to SCF and LCM. In previous classes you have to study when we find the SCF and when we find the LCM, because mostly the questions are same, but it depend upon the meaning of the question. It decide that what's the question want when you find the SCF or you find the LCM. After understanding the concepts or meaning of the questions, we decide LCM or SCF. So we take two questions, one for SCF and other for LCM. I don't know which are the LCM and which are the SCF. First we explain the concept and we are decide we have to use the SCF or LCM. Before starting the solution of this question, firstly, if I set the numbers 4 and 10, SCF, LCM, 15 and 12, SCF, LCM, 4, 8, SCF or LCM. If we find here SCF or LCM, SCF is 2 and LCM is 20. Here SCF is 3 and LCM is 60. SCF 4 and LCM is 8. If you think all the examples of the SCF LCM, you can see in all cases, if I say SCF of two numbers, LCM of two numbers is always greater than SCF. SCF is always less than two numbers. You can see SCF is less than two numbers, but in this case SCF is equal to numbers. So you can say that SCF is less or equal to the numbers. Same for LCM. If you consider these three examples, you can see it LCM is always greater than or equal to the numbers. Means when you want, or when the question demand we want the greater than the numbers, we find LCM. Don't think about the meaning, that is the least common multiple, that is the highest common factor, highest least, doesn't matter, because that is a common factor, that is a common multiple. So two different things. Highest least means नहीं मतलब है यहाँ पे. Question demand greater than numbers, we find LCM. Question demand smaller than the numbers, we find the SCF. नंबर से छोटा SCF, नंबर से बड़ा LCM. So you can see the examples how we apply the question. If you see the first question, two tankers contain 850 liters and 680 liters respectively. I think two tankers contain milk होगा यहाँ पे. Find the maximum capacity of tanker which can measure the petrol of either tankers in exact number of times. एक टैंकर है, दूसरा टैंकर है, 850 एंड 680 कैपेसिटी इनकी दी है लीटर में. हम ऐसा कौन सा मेजरमेंट लें जिससे फर्स्ट वाले को मेजर करें
या सेकंड में मेजर करें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर हो जाए। अच्छा, हमें इन दोनों को मेजर करना है, तो जो हमारा नापने वाला कंटेनर होगा, कैपेसिटी कंटेनर, वो इनके मेजरमेंट से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। अब हम 1000 लीटर का कंटेनर लेकर के तो मेजर नहीं कर सकते ना, 1000 लेंगे तो मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब इन क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें जो इसका मेजरमेंट वाला चाहिए कंटेनर, वो इन नंबर से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज वी कांट मेजर दिस। हम इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, 1000 लीटर कंटेनर लेके इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनसे छोटा होगा तो एक बार या 2 बार 3 बार 4 बार में 10 बार में मेजर कर लेंगे। तो मीन्स हमें क्या समझ आया कि वी वॉन्ट टू फाइंड द आंसर, फर्स्टली फाइंड द एचसीएफ, मीन्स कैपेसिटी ऑफ द tanker which can measure exact number of times, that is equal to SCF of 850 and 680। हमें इनसे छोटा चाहिए, नंबर से छोटा के लिए एचसीएफ। आप सिंपली इनका एचसीएफ यहां फाइंड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका एचसीएफ आपका क्या आएगा, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। आई थिंक 170 लीटर। 170 लीटर इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। सो 170 लीटर का कंटेनर लेंगे, मेजर करना शुरू करेंगे पहला टैंकर को तो 5 टाइम्स मेजर हो जाएगा, दूसरे को मेजर करना शुरू करेंगे तो 4 टाइम्स मेजर हो जाएगा। पूछता है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टाइम्स वी कैन मेजर द फर्स्ट टैंकर, तो 5 टाइम्स। 850 डिवाइडेड बाई 170, 5 टाइम्स मेजर फॉर द फर्स्ट टैंकर एंड 4 टाइम्स मेजर फॉर द सेकेंड टैंकर। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 9, 5 + 4 9 टाइम्स। ओके, second question, if we say on a morning walk 3 person steps together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? What value are suggested? या थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन यहाँ वैल्यू बेस भी ले लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन। 1 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर कम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। 1 नंबर का इसका आंसर आपको देना बाद में, इसके डिस्कस बाद में करेंगे हम, फिलहाल हम पहले इसकी बात करेंगे। तो 3 पर्सन है, 3 लोग चलते हैं, जरूरी नहीं हर इंसान एक कदम एक जैसे हो, स्टेप्स कोई छोटा स्टेप कोई बड़ा स्टेप कोई बड़ा स्टेप चलता है। तो एक का 40 सेंटीमीटर है, एक का 42 सेंटीमीटर, एक का 45 सेंटीमीटर। सो मिनिमम कितने डिस्टेंस हम लें कि ये चले या ये चले या ये चले, कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर लें। मतलब ऐसा ना हो कि इसको हाफ स्टेप चलना पड़े बची हुई जगह के लिए। मतलब अगर इसने 20, इसने हो सकता है 32, इसने हो सकता है 20 या 18 16 स्टेप चला, वो पूरी डिस्टेंस खत्म हो गई। पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वो क्या होगा स्टेप। अब देखिए, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, स्टेप्स चलने हैं, तो इससे छोटे डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर हम 20 सेंटीमीटर लें तो क्या ये चल पाएगा? एक जगह लिखा है कंप्लीट स्टेप, क्या 20 सेंटीमीटर का स्टेप कंप्लीट होगा? नहीं होगा। मतलब स्टेप्स 40 से बड़ा होना चाहिए, श्योर। इससे 42 से बड़ा होना चाहिए, उससे कम स्टेप वो चल ही नहीं सकता सेकेंड पर्सन। 45 सिंपली बड़ा होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए 45 सेंटीमीटर फॉर द फर्स्ट स्टेप। So means the distance for all three is minimum greater than 45. Means for the questions concept say that कि इनको मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो इन तीनों से बड़ी होनी चाहिए चलने के लिए। मिनिमम वर्ड आया, लीस्ट वर्ड आप पहले पढ़ते हैं पिछली क्लासेस में, पर यहां हमें खाली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से मतलब है कि हमें इन तीनों से बड़ी वैल्यू चाहिए। सब छोटी डिस्टेंस कितनी हो,
लेकिन इनसे बड़ी होनी चाहिए वो, तभी सॉल्व हो पाएगा, तभी डिस्टेंस निकलेगी। तो नंबर से बड़ी वैल्यू के लिए क्या फाइंड करते हैं हम? एलसीएम। नंबर से छोटी वैल्यू के लिए एचसीएफ। मतलब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि इफ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन क्वेश्चन वी कैन गेट द आंसर। सो क्या होगा इसके आंसर? डिस्टेंस minimum distance covered by the complete say step. You can write down all the step, that is equal to LCM of 40, 42 and 45 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, यूनिट का मार्क्स करते एग्जाम में। जो भी इसका आएगा आंसर, दैट इज द एलसीएम ऑफ द जो भी इसका आएगा एलसीएम, वो क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस 2520 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। मीन्स मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 2520 सेंटीमीटर ये रहेंगी। तो ये कितने टाइम से कवर करेंगे, कितना स्टेप चलेंगे? बोले नंबर ऑफ स्टेप्स फर्स्ट के डिवाइड कर देंगे तो 630 स्टेप्स। इसका करेंगे कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। टोटल स्टेप्स आप कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप्स जो भी क्वेश्चन पूछा हो। फिलहाल यहाँ मिनिमम डिस्टेंस पूछा था, तो हमारा हो गया 2520 इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड फॉर ऑल। नेक्स्ट था व्हाट वैल्यू आर सजेस्टेड, क्या वैल्यू सजेस्ट कर रहा है। तो जब भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देना है, नेगेटिव आंसर आपको नहीं देना है, कुछ भी लिखा रहे वहां पे। सो दैट्स व्हाट वैल्यू सजेस्टेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द वैल्यू सजेस्टेड क्या होगा? वैल्यू मॉर्निंग वॉक की बात कर रहा है, तो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, नंबर से छोटी वैल्यू